Assalamu alaikum everyone. This is Asif Naman Loti and I'm going to present with you 2025 most demandable future skills which everyone must knows and prepare yourself for your children, or if you are a professional, or if you are a housewife, or already if you are doing some jobs for last 5 years or 10 years, but now this is the time that you must know that where the industry is going on in terms of IT industry, in terms of production industry. If you belongs to, if you are a doctor, engineer, or whatever the profession you are, you must understand all these skill sets now. And this is not mandatory कि आपको ये सारे skill sets के ऊपर grip होनी चाहिए. You can pick any one of them and prepare yourself for the next 6 months, so that after 6 months you must have the complete understanding and thought process that what exactly you need to do now. So let's discuss more in detail about those skills. The first skills I would like to present you the artificial intelligence. In a simple words, AI is the simulation of your human intelligence. जिस तरह जो काम understandable language के अंदर, if I would like to present you that if the 10 people are performing a one work, now in the future a one human will perform the work for the 10 peoples. Now अब organizations को 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है. Only the organization will be hiring for those resources who have the understanding how to use the AI. And I would like to recommend you that, since if you not belongs to chat GPT, if you don't have the any awarenesses, अगर आपको Google Bard का नहीं पता, आपको Gemini का नहीं पता, I strongly recommend you that you need to understand AI. आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, और ऑर्गेनाइजेशंस को इस वक्त जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर द स्मार्ट वर्कर्स, दे नो नीड फॉर द हार्ड वर्कर्स. एक आदमी जो ये फील करता है, प्रेजेंट करता है, आई एम ए हार्ड वर्कर, आई कैन डू दिस वर्क, उनको एक काम को 8 घंटे में करने की जरूरत नहीं है, बट ए आई कैन डू द सिमिलर वर्क विद इन ए 2 hours नाउ. सो हु इज द बेटर? द पर्सन हु विल बी परफॉर्मिंग द वर्क विद इन ए 2 hours और 4 hours नाउ. अब यहाँ पे ये नहीं है कि AI आपकी जॉब को ख़त्म कर देगी. AI उन लोगों के लिए एक हेल्पफुल टूल के लिए हमारे सामने आपको हेल्प करेगी जो इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसके ऊपर ग्रिप करके अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस की हैं उनके अंदर अपना एक वैल्यू एडिशन करेंगे एज ए स्मार्ट वर्कर के तौर पे. सो यू मस्ट नो, if anyone would like to ask you कि AI की implementations कहाँ पे है, so I just picked the 3 important fields. There are tons of fields where AI is creating the great value addition for the future of work, जिसमें आपकी health care है. All the industry, there are tons of solutions for the healthcare industry. For diagnostic है, personalized treatment plans and drug discoveries है. और अगर आप healthcare industry को थोड़ा सा programmatically prospective में tools सीख लें AI के, so you can help a lot for healthcare industry now. और healthcare industry में ऐसे AI के लोगों की experts की ज़रूरत है who can automate their work, who can easily able to train the models just like humans. आपने इंफॉर्मेशन मशीन्स को कैसे आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, एंड इन द सिमिलर वे आपने कैसे डाटा को ट्रेन करके एक्सपेक्टेड आउटकम्स को टेस्ट करना है. सो I would strongly recommend that you must need to understand about the AI. In the similar way, AI can help in the finance, fraud reductions applications, algorithms, tradings. In the similar way, customer services, everything can be managed with the help of AI fields as well now. In the similar way, transportations and transportations पे आपके signal processing and there are other stuff in terms of your managing the traffic control systems. So AI has a future skills. You can take these skills for your betterment. The second skills I would like to recommend, this is the cyber security field, and this skill set is for those people who have a passion for securing the system now. This is again highly demanding not only in Pakistan but all over the world, especially in Middle East market में इसकी बहुत सारी opportunities है. And the primary objective for cyber security that you need to protect the organization systems को, organization की databases को, organization की sensitive information को leak out होने से बचाना, how to protect your softwares, how to protect your hardwares. And this is the future skills. If you have the expertise in this area, I can assure you
your next 5 years or 10 years will be secure enough now. So if you are not interested, you can still engage your children who are in universities. You can creating the awarenesses in front of your kids, so they must know exactly the importance of cyber security. The number third skills, which is also highly demanding currently, and also the progression will be increasing day by day, and this skill set is called as your data science field. और data science के अंदर basically you must know and understand कि डाटे की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, डाटे को एक्सट्रैक्ट करना, द डाटा विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जो फ्लैट फाइल्स के थ्रू भी हो सकती हैं, जो आपकी जो CSV फाइल्स है, एक्सेल फाइल्स है, और टन्स ऑफ डाटा विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी वेब्स एज वेल नाउ. सो उस डाटे को एक्सट्रैक्ट करना, उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स के अंदर नॉलेजेबल बनाना, और नॉलेजेबल बना के उसमें से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, कंप्यूटेशन करना मैथमेटिकल के थ्रू, परमोटेशन, प्रोबेबिलिटी, all these things are coming under the umbrella of data science now. So these skills anyone can easily learn. There is no any hard rules that अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं भी है तो still you can learn these skills. You just need to spend 2 to 3 months dedicatedly and you can get the mastery in the data science field now. प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, डाटा को माइन करना. माइनिंग मीन टू ड्रिल डाउन द इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज डाटा इज सेइंग ऑल अबाउट, और डाटा को क्लीन करना. क्लीन क्या है कि आपके पास जब डाटा डिफरेंट फेसेस के थ्रू आ रहा है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, वीडियोस की फॉर्म में है, इमेजेस की फॉर्म के अंदर है, CSV फाइल के अंदर है, या आपका डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, इन सारी चीज़ों को आपने क्लीन करके मीनिंगफुल बना के और इसकी फीचर की इंजीनियरिंग करनी है. फीचर इंजीनियरिंग क्या है कि आपको एक प्रॉब्लम शेयर की जाएगी आपके कस्टमर की साइड से, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम यू जस्ट नीड टू understand the domain of that particular feature and creating the data sets as per the feature. And feature engineering is all about that you need to understand each and every single column's details. Okay, what exactly your column A is saying, B is saying, C, D, E, F, and correlating these कॉलम्स विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, और डाटे को आपने उनके नंबर्स में कन्वर्ट करना. हाउ मैनी सेल्स प्रोड्यूस, हाउ मैनी ऑर्डर्स प्रोड्यूस विद इन 5 months, 6 months, 1 year. और फ्यूचर के अंदर जितनी भी आपकी डिसीजंस मेकिंग प्रिडिक्शंस होती हैं वो सारी की सारी डाटा साइंस के थ्रू होती है. और मॉडल करना, इवेलुएट करना, एंड देन यू नीड टू कम्युनिकेट in the form of user stories in front of customer. So data science is a very interesting field and highly recommending for those people who still don't have the programming background. आप even housewife है, still you can learn this skill within 3 months आपको required है, and take some courses from Google. Google ने कुछ courses इसके free भी किए हुए हैं. आप you just need to search on the free courses for the Google for data sciences. You can easily learn this skill set. Now I'm going to present you the fourth skills, which is called as the business intelligence skills. This is another important skill set which is called in your future skills for the next 10 years as well. And this skill set will come after your data science field now. So data engineer, which primary responsibility will be for extracting the data, loading the data, making the data in a meaningful form. And the BI intelligence, the business intelligence person responsibility will be that how he needs to present that information जो data engineer ने की हुई है front end के ऊपर while using the different reporting tools like Power BI, like Tableau. अगर इन tools में से आप एक tool भी सीख लेते हैं and you can easily get the mastery in these tools within a 2 months now, and you can easily present the information, विजुलाइज करवा सकते हैं डाटा को डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू, पाई चार्ट्स, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बार चार्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर बिजनेस ओनर्स, कंपनी CEOs को कैसे आपने प्रेजेंट करना है. एंड दिस स्किल सेट विल एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर दोस्त जिनको डिजिटल मार्केटिंग और गूगल के अंदर ट्रैफिक को एनालाइज करना कैसे करते, डाटा को इनसाइट्स को कैसे अंडरस्टैंड करते. सो आई मस्ट रिकमेंड दैट this skill, if you will learn, you will get a lot of opportunity not only in Pakistan but as well as remotely. आप बहुत सारी अच्छी opportunities को grab कर सकते हैं. The number 5th skill set
विच इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ कैसे डील करना, और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टास्क ना। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त ऐसे लोगों को फ्यूचर में स्किल सेट की ज़रूरत है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, जिनको द आर्ट ऑफ डीलिंग द पीपल पता हो, और जिनको ये पता हो कि जो ह्यूमंस हैं, डिफरेंट ह्यूमंस माइंडसेट्स को साइकोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, उनको किस तरीके से उनकी नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करना, उनसे काम करवाना, उनको कैसे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर उनकी वेल बींग्स के लिए उनके वेलनेस के प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाना। एंड इन द सिमिलर वे ऐसे मैनेजर्स की ज़रूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन को जिनके पास पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हो। और चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में हो, आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर हो, या आप कार, ऑटोमोबाइल्स और वट एवर, एंड इफ़ यू आर इवन, लेट्स टेक एग्जांपल इन होम, इफ़ यू हैव द लीडरशिप स्किल्स नाउ, तो लीडरशिप स्किल्स जिसके पास होती है वो हमेशा एक सुपीरियर लेवल के ऊपर होता है। उसको पता होता है कि लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, कोलैबोरेट कैसे करते हैं। एंड टेक एग्जांपल कि अगर आप एक घर के अंदर भी हैं, तो आप अपनी लाइफ के जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, तो हम अमूमी तौर पे देख सकते हैं कि हम किसी बड़े से मशवरा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मामू हैं या आपके चाचू हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। सो ऑल दी फैमिली मेम्बर्स, जब भी आपका कोई प्रपोजल आता है तो आप यही कहते हैं कि हम मशवरा करके अपने मामू से, चाचू से, then we will let you know कि either we would like to proceed with this proposal or not. So ये वो एलिमेंट होता है कि वो हर फैमिली के अंदर एक लीडरशिप का रोल होता है। इन द सिमिलर वे, जो लीडर होता है उसके पास एक करिश्मा होता है, उसके पास एक इन्फ्लुएंस होता है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द पीपल, और उनकी बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन चलती है। सो अगर आपके अंदर ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं, आप हम्बल हैं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंट है, and you know about the latest trends and techniques and empowered yourself, अगर आप टॉकटेटिव हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको लोगों से बात करना पसंद आता है, सो इस रोल को यूज़ करके यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एज वेल एज रिमोटली एज वेल। Number six skill set, which is one of my favorite skill set. Right now, every bank, even every organization, they need the data persons who understand and help the organization for extracting the information. And the Python language is the future language. आप अपने बच्चों को इसके ऊपर ट्रेन करें, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इवन इफ़ यू विल स्पेंड अ टाइम फॉर 3 months, आई कैन अश्योर यू, आप इसको फॉलो करके, पाइथन को लर्न करके, आप डाटा साइंस की फील्ड में बहुत इजीली आप इसको अपने आप को एक्सीलरेट कर सकते हैं। आपको ये लैंग्वेज आपको बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा काम करेगी, और ये लैंग्वेज आपको स्पेशली हेल्प करेगी रिपोर्टिंग के अंदर, पावर बीआई के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड दिस लैंग्वेज इज़ फॉर दोज who would like to develop the machine learning models, LLM models, which is called as your large language models के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। So Python is my best language. So I must say कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में शौक है, so you must try to train yourself for the next 3 months for getting and learning this language now. Number seven skill set, which is called as the problem solving skills. इस वक्त जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंज फील हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक व्हेन एवर द प्रॉब्लम इज कमिंग, सो द ऑर्गेनाइजेशंस management, C level management, they are expecting someone will come and provide them the solution, that where this problem comes from, why this problem is creating, and they exactly know how this particular problem happens, and who is and when certain scenarios, and whom we are saying that these problems are coming for a certain person or a certain pattern. सो ये प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उसके सॉल्यूशंस को प्रपोज करना, ऐसे लोगों की इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी ज़रूरत है। और अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एंड इफ़ यू नो एंड हाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, मैं आपको हेल्प आउट भी कर देता हूँ। The more the knowledge you have, the more the wisdom you have now. The more the knowledge you have means that
जितना ज़्यादा आप एक सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप होगी, आपकी कोई भी फील्ड है, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, आप कोई कारपेंटर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, और इफ़ यू बिलोंग्स टूवर्ड्स एनी फील्ड, और इफ़ यू आर ए ह्यूमन रिसोर्स एग्जेक्टिव और मैनेजर, अगर आपके पास इन सर्टेन एरियाज में कोई भी प्रॉब्लम शेयर करे, सो आपको लेटेस्ट मार्केट के ट्रेंड्स का पता हो, आपको मार्केट की अवेयरनेस पता हो, आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेस्ट tools and techniques are in a trending right now, and you must know and help the organization that if the problem is coming, these are the solutions. और ऐसे लोग जो solutions propose करते, they always be sitting at the top of the position now. So आप इस स्किल सेट को भी लर्न करके अगले नेक्स्ट 5 years के लिए अपने आप को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दिस इज फ्यूचर स्किल्स आई वुड लाइक टू से नाउ. Skill number 8. This is my one of the most and last skill set, which is called as the data analytics skill set. So data analytics ये skill set उन लोगों के लिए है who does not belongs towards a programming background, उनको programming अच्छी नहीं लगती, and they are struggling in programming, और वो data engineer नहीं बन सकते, या वो आप business intelligence की फील्ड के अंदर नहीं आ सकते. तो डाटा एनालिटिक्स के अंदर यू नो नीड टू बॉथर अबाउट एनीथिंग. आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर अच्छी ग्रिप है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छा, आप उसके ऊपर आप विजुलाइज डेटे को कर सकते हो, आपको डेटे की डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पता है, आपको डेटे की सैम्पलिंग कैसे करते हैं, तो आपको स्टैट्स के अंदर फाउंडेशंस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो स्टैट्स और प्लस सम हाउ 30% आपका मैथ्स, और एक्सेल का टूल अगर आपको अच्छा आता है, आपको पावर बीआई का टूल अच्छा आता है, या टैब्ल्यू का टूल अच्छा आता है, तो बिलीव मी कि डाटा एनालिटिक्स की रिमोटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन अ मार्केट, स्पेशली इन यूएस मार्केट, मिडल ईस्ट मार्केट. सो यू मस्ट नो कि डाटा को कोरिलेट कैसे करना है, उसके अंदर डाटा की पी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसमें स्टैंडर्ड एविएशंस क्या होता है, मीन मीडियन मोड, दीज आर द थिंग्स. एंड इन द सिमिलर वे आपको अगर पाइथन के अंदर थोड़ा सा एज मिल जाता है, अगर आप उसको लर्न कर लेते हैं, तो आप बड़े एडवांस लेवल के ऊपर जाके आप डेटे को डायग्नोस कर सकते हैं, आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, आप डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं, और आप प्रेस्क्राइब एनालिसिस कर सकते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो दे एग्जैक्टली नो द आर्ट ऑफ मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा नाउ. सो आई होप दैट ऑल दीज 8 स्किल सेट, अगर आप किसी एक स्किल सेट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, so you have the lots of opportunities in the future perspective. And I would like to say that any one of you must train in a one skill set, and gradually step by step you can get the mastery once you will be start practicing on each and every day. I hope this session will help you to understand and make your journey for your starting the next year planning for the 2025. Now thank you very much for watching this session. See you in